Good morning, students. The third method of asexual reproduction is the spore formation. Now, in spore formation, the examples are this method is seen in unicellular as well as multicellular organisms. In unicellular, we have different types of bacteria. Some of the bacteria produced by this asexual mode of reproduction, that is spore formation, whereas other multicellular organisms like some fungi, namely Rhizopus and Mucor, and some non-flowering plants like ferns and mosses, they reproduce by this method of spore formation. Now, what is actually spore formation? Here you can see this diagram in which you can see this is Rhizopus. This is the structure of the Rhizopus. Rhizopus is nothing but a fungi. तो ये fungi का structure है. Rhizopus इस तरह का दिखता है. Can you see this ball-like structure? Now this ball-like structure is known as the sporangium, and this is the stem. Okay. Now these balls or the sporangium or the plural is the sporangia. Sporangium is singular, sporangia is plural. So sporangia contains the spores. Okay, the spore bearing case or capsule is known as sporangium in Rhizopus. When the conditions are favorable means when the environment has proper amount of light, proper heat is there, and required amount of moisture is present, then what happens to this sporangium? They burst open. Burst open means फट जाते हैं और क्या होता है, स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं. नाउ सीड्स किस तरह से स्प्रेड होते हैं आपने उसमें मेथड में पढ़ा होगा, बाय एयर और विंड और विथ वाटर, बाय मीन्स ऑफ वाटर, बाय मीन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स. ठीक है, उसी तरह से ये आपके जो स्पोरेंजिया हैं ये भी एयर और वाटर की वजह से ये स्पोर्स जो हैं वो फैल जाते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट एक्चुअली इट इज. इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक reproductive units called spores. Now these microscopic reproductive units, what are the spores? They are the microscopic reproductive units. When the spore case of the plant, spore case means this is your sporangium. Okay, this is the case जो उसकी outline है, that is the case. तो spore case of the plant bursts. Burst means when it gets open, फटता है. Then the spores spread into air. When these airborne spores land on food or soil अंडर फेवरेबल कंडीशंस, क्या होगा, अब ये हवा में फैल चुके हैं और कई जगहों पर जाकर ये जमा हो जाएंगे. फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइंड ऑफ योर फूड फूड स्पॉइलेज कैसे होता है, यानी खाना कैसे सड़ता है फंगस की वजह से. हैव यू सीन ब्रेड मोल्ड? आपके ब्रेड अगर बासी हो जाती है, कई दिन हो जाते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट के बाद उस पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर दे आर एक्चुअली द राइजोपस. ये आपकी फंगस है, राइजोपस है, जो एयरबोर्न होने की वजह से उसके स्पोर्स हवा में फैल गए हैं और अब हमारे खाने पर यानी फूड पर जमा हो गए. और जमा होने के बाद जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मीन्स like the damp and warm condition. Damp means a little bit moist condition और warm यानी गर्मी, हरारत. जितनी उन्हें गर्मी चाहिए, जितना उन्हें पानी चाहिए, जब वो conditions रीच होती हैं, अराइज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं फेवरेबल कंडीशंस. देन व्हाट हैपन, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. जर्मिनेट होते हैं जैसे आपके सीड जर्मिनेट होते हैं. ठीक है, और उसी तरह से एक न्यू प्लांट कैन अराइज. ठीक है, तो ये आपका फंगस है राइजोपस.
राइजोपस के अलावा आपके दूसरे फंगस भी हैं अलग टाइप्स के, जिसमें कि एग्जांपल आता है आपका पेनिसिलियम का। हैव यू सीन दिस टर्म पेनिसिलियम? पेनिसिलियम इज़ नथिंग बट द वेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग and discovered by Alexander Fleming. Alexander Fleming has discovered this antibiotic for the very first time. So you can see the structure of Rhizopus and this structure of Penicillium. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 या 3 या 4, बहुत ज़्यादा नहीं, स्टेम होगी और वो गैप पर होंगे, ठीक है। ये गैप पर है जिनमें अलग अलग स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेनिसिलियम के स्ट्रक्चर में आपको ये पूरा एक बंच बना हुआ है। यहाँ पर इंडिविजुअल है स्पोरेंजिया, यहाँ सारे स्टेम्स कंबाइन होकर एक बंच बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके पेनिसिलियम का। ये आपका ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस है। यू कैन सी डिफरेंट स्पोरेंजिया है विथ स्टेम, ये अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, ये सब एक साथ बंच के फॉर्म में है। सो दिस वॉज फर्स्ट यूज बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड द नेम ऑफ दिस एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। Okay, the very first antibiotic was penicillin and it was produced by the fungus known as penicillium. Fine, तो बहुत सिंपल सा है आपका स्पोर फॉर्मेशन मेथड। इसको अच्छे से रीड कीजिए एक बार एंड देन टेल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स।